Today we are going to start a new chapter, that is metals and non-metals of class 10. So in this chapter generally we will discuss about the properties of metals and non-metals. If we discuss, if we think about the elements, whatever the elements discovered till now 118 elements has been discovered. Okay, so you know, you have what hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. All these are elements, whatever you see in your periodic table. So till now already 118 elements has been discovered. So out of these 118 elements, some are metals and some are non-metals. ठीक है, some are metals and some are non-metals, and another one is there. So another thing is metalloids. So these 100 elements can be classified into metals, non-metals and metalloids. Got my point? ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो अभी तक एक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है, जो आपका पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो ना, बहुत सारा एलिमेंट्स है. सो दिस एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. ओके, सो आउट ऑफ दिस ये 118 एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स से मेटल्स कितना है, नॉन मेटल्स कितना है एंड मेटालॉइड्स कितना है. सो इन दीज थिंग्स, if you observe your periodic table, you can easily understand these are categorized, these are classified into two regions. So in left hand side or blue color or in some way they are categorized in your periodic table. So out of these 118 elements, 90 are metals, okay, and around I think 22 are non-metals. Around 22 are non-metals. Okay, so 90 metals and 22 are non-metals. Till now it has been discovered. So remaining are metalloids. So if we take the examples of metals, if we take the examples of some metals, it's like if you see sodium, potassium, sodium Na, potassium K, magnesium, aluminium, these things are your metals. And some these 22 countable numbers like non-metals are there. So like oxygen, hydrogen, nitrogen. So if we take the examples of non-metals, are like oxygen, hydrogen, etc. Okay, so these things are there, so these are non-metals. Okay, got my points. And now things comes, what are metalloids? Okay, so what are metalloids? Metalloids are the substance or the elements. Metalloids are the elements which shows the properties of both metals and non-metals. What I am saying, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, देखो metalloids वही elements है, ठीक है, जो कि ये मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और ये नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो करेगा. समझ में आया बच्चों? सो मेटालॉइड्स किसका प्रॉपर्टी शो करता है? उसका कुछ अलग से कुछ प्रॉपर्टी नहीं है. समझ में आ रहा है बच्चों? इसका कोई अलग से कुछ प्रॉपर्टी नहीं है. कभी ये मेटल्स का प्रॉपर्टी शो करेगा, कभी ये नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी शो करेगा, या दोनों का मिला के प्रॉपर्टी शो कर सकता है. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स. इट शोज द properties of both metals and non-metals. ठीक है बच्चों? सो अभी मैं अगर इसका एग्जांपल
एग्जाम्पल मतलब अगर लेना चाहूँ, सो देयर आर ओनली फ्यू मेटालॉइड्स, सो दैट मीन्स 90 plus 22 and this remaining 90 plus 22 how much, 2 9 10 11, so 112 out of 118 112 you got that metals and non-metals, and then this remaining 5 6 are what, metalloids. So example, if we take the examples of metalloids example are like silicon, so once again silicon, germanium, boron, etc. Silicon, germanium, boron, etc. Okay, so far we have discussed about metals. Just a brief introduction, I have given a brief introduction of metals, non-metals, and another one is metalloids. So फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये 118 एलिमेंट्स को हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वन इज मेटल्स, अनदर वन इज नॉन मेटल्स, एंड लास्ट वन इज मेटालॉइड्स, ठीक है। अभी देखो बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, and we know there is only countable numbers, that is 22 numbers are what, non metals only। 22 क्या है, नॉन मेटल है। 90 लगभग 90 क्या है, अभी तक डिस्कवर हुआ है जो मेटल है, और बाकी जो बच गया ये 118 से, ये क्या है आपका मेटालॉइड्स। अभी ये मेटालॉइड्स आपको it may be a new term or it may be a new thing for you, what is metalloids। so metalloids आप ये समझ के रखिए, metalloids वो एलिमेंट्स है जो कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दोनों का क्या करेगा, आपको प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। या कभी मेटल्स का प्रॉपर्टी शो करेगा, कभी भी नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, ठीक है। So now if we take the examples of metals are if you see your periodic table, अगर आप आपका पीरियोडिक टेबल को, जो पीरियोडिक टेबल होता है, सो वो पीरियोडिक टेबल को अच्छा से आप फॉलो करने से आपको सब समझ में आएगा। पीरियोडिक टेबल में इस साइड पे आपको क्या रहेगा, मेटल्स, ये यहाँ पे एक नॉन मेटल रहेगा, और यहाँ पे एक जिगजैग लाइन बना हुआ रहता है, ये आपका मेटालॉइड्स का है, और इस साइड में क्या होगा आपका नॉन मेटल्स। समझ में आया बच्चों? एक बार पीरियोडिक टेबल निकाल के अच्छा से देख लेना, ठीक है। सो इस साइड में बहुत सारा आपको दिखाई देगा कि लगभग 90 क्या होगा आपका मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल का आप राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड में देखोगे क्या है, उस साइड में नॉन मेटल्स है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है, ये क्या है, हाइड्रोजन ऑलरेडी मैंने बोला है नॉन मेटल्स, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल्स यहाँ पे होगा जिसका एटॉमिक नंबर इज 1। सो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मेटल्स क्या होगा, मेटल्स का एग्जांपल हम लोग अगर दो चार एग्जांपल ले समझने के लिए, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल्स है। और नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, दिस थिंग्स, फ्लोरीन, दिस थिंग्स आर क्या है, नॉन मेटल्स। So metalloids का example, if we take the metalloids example, you can just by heart or remember the examples of metalloids. So there are only few, so it can be, you can memorize it. So dear students, metalloids are examples of metalloids। if अगर आप metalloids का example देखो तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, metalloids। ठीक है बच्चों, समझ में आया? होप आपको अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस मेटल्स का प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। सो properties of metals and non-metals, now we are going to study, हम लोग ये पढ़ेंगे। सो देखो बच्चों, अगर प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो कौन सा प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक दो तरफ से हम लोग पढ़ेंगे। इन टू वेज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Okay, properties of metals and non-metals. One is we are going to study its physical properties. What we are going to study? Its physical properties.
another one we are going to study chemical, their chemical properties. समझ में आ रहा है? अच्छा से समझो, धीरे धीरे समझो। प्रॉपर्टीज को हम लोग दो चीज को दो तरफ से पढ़ेंगे। एक उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स का भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स का भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब भी मेरे को देखो, अभी स्ट्राइक आपका माइंड में ये स्ट्राइक करेगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली आपका माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा। सो व्हाट इट इंडिकेट बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या इंडिकेट करता है? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जस्ट इन अपीयरेंस व्हाट टाइप ऑफ मींस प्रॉपर्टीज इट शोज। इफ यू कंसीडर द मेटल्स, what type of properties means in outside, you cannot say outside, just like metals you can say that shiny, metals are shiny, metals का melting point, boiling point, so these things are called physical properties. ठीक है, these things are called physical properties. लाइक कैसे ये कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, हीट कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। एक मेटल मान लो कि सोडियम इज ए मेटल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये दिखने में कैसा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो दिस थिंग्स आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मींस व्हाटएवर इट्स अपीयरेंस में उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो दिस थिंग को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक मेटल दूसरा मेटल के साथ या दूसरा चीजों के साथ, अलग अलग चीजों के साथ, ठीक है, कैसे रिएक्ट करेगा, इस चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में। समझ में आया मेरे बच्चों? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब हम लोग का मतलब जस्ट अपीयरेंस में क्या क्या, मतलब उसको देखकर आप क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका मेल्टिंग पॉइंट आप जस्ट उसको मेजर करके बता सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने। फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अच्छा से समझो बच्चों, और रफ कॉपी लेके लिखते रहो। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कंडक्शन। ओके, सो मेटल जनरली जो मैं कंडक्शन के अंदर में क्या पढ़ूंगा, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा। एक जगह से दूसरा जगह पे ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल ट्रांसफर कर सकता है या नहीं, ये चीज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि कंडक्शन में whether metals can conduct heat and electricity or not. So generally if we think of metals are good conductor of heat and electricity. Remember, metals are good conductor of heat and electricity. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, Fe, ठीक है। इफ यू टेक ए आयरन रॉड, ओके, एंड इफ यू पुट इट इन फायर, ठीक है, मान लो कि आपने एक क्या आयरन रॉड लिया और इसको क्या किया आपने, इसको क्या किया, फायर में ऐसे रखा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम व्हेन यू मतलब जब आप इसको फायर में रखोगे कुछ देर बाद आप ये जो आयरन रॉड है वो आप बेयर हैंड से मतलब खाली हाथ से आप उसको पकड़ नहीं सकते। क्यों पकड़ नहीं सकते? वो एक्सट्रीमली हीट होगा, वो आपको हाथ को जला देगा, ऐसा होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हीट क्या हुआ, आपने इस पोर्शन को आपने हीट किया लेकिन हीट हैज बीन कंडक्टेड दिस वे ऑल्सो। ठीक है, मतलब हीट क्या हुआ, इस तरफ से इस तरफ क्या हुआ, कंडक्ट हुआ। दैट मीन्स मेटल कैन कंडक्ट क्या है, हीट। So another example I am saying regarding electricity. So मेरे प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या बोला, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास हो सकता है। आपका घर पे जो वायरिंग है उसका जो भी मतलब वायर वगैरह होगा, सो इसका अंदर जब आप उसका इंसुलेशन जो हटा के अंदर में क्या होगा, आपका कुछ वायर दिखाई देगा, मेटालिक वायर, मे बी इट्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। सो दिस एल्यूमिनियम और कॉपर वायर कैरीज और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। So that means metals are good conductor of heat and electricity. Okay, so next we are going to study about another one, that is ductility, another properties, that is ductility. So this can be a new term for you. So ductility मतलब क्या है? डक्टिलिटी मतलब ये है कि कोई भी आपको मेटल है उसको आप 3 आयार में खींच सकते हो, 3 आयार में ट्रांसफर कर सकते हो, 3 आयार में मॉडिफाई कर सकते हो। सो दैट मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स by which it can be drawn into 3 wires. ओके, ये समझने के लिए आपको मैं क्या समझाऊं, देखिए कोई भी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि आपके पास ये एक मेटेलिक पीस है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक मेटालिक पीस है। इस मेटालिक पीस को आप क्या कर सकते हो, बाय हीटिंग और बाय एनी अदर प्रोसेस यू कैन मेक इट लाइक वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये सब तार देखा होगा, हम लोग जो किसी चीज को बांधने के लिए मतलब यूज करते हैं, ठीक है, लाइक दिस यू हैव सीन वायर्स लाइक दिस इन मार्केट, it is available like some metallic wire available. So these wires are actually drawn from what, some metals. Okay, maybe it's of aluminium wire or something. So if it is aluminium wire, it can be drawn it from aluminium metal. Got my point? So metals can be drawn into thin wires. Got my point? So next ductility के बाद हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे। ओके, सो डक्टिलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अनदर प्रॉपर्टीज, दैट इज मेलिएबिलिटी। ये भी आपको नया लगेगा, मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी ये कहता है, अच्छा से समझो, मेलिएबिलिटी मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इट कैन बी बीटेन इनटू 3 शीट्स। मेटल्स को हम लोग मतलब किसी चीज से अगर उसको मारा जाए, ठीक है, अगर किसी चीज से उसको हैमरिंग किया जाए, मतलब अगर आप एक हैमर लिया और किसी मेटालिक पीस को आप मतलब और ये हैमरिंग करते हो, तो उसको क्या कर सकते हो, आप एक 3 शीट में बदल सकते हो। अभी ये एग्जांपल लेते हैं, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ए टीन पीस, टीन का अगर आप एक मेटल पीस लो और उसको आप फिर से क्या कर रहे हो, हैमर से उसको बीट कर रहे हो,
एक हैमर से उसको क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो, तो उसको और भी ये क्या हो जाएगा, और स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड हो जाएगा ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ये जो क्या होता है, आदमी लोग कुछ ये आयरन को अगर आप हीट करो, ओके आयरन है, आयरन मान लो कि इस आयरन रॉड है, ओके सो आयरन रॉड को अगर आप हीट करते हो एंड इफ यू हीट करके करके अगर उसको पूरा मतलब लाल कर दिया और इसके बाद उसको अगर बीट कर रहे हो तो यू कैन गिव इट ए न्यू शेप, यू कैन गिव इट ए न्यू शेप, you can make it flat or you can give it any other shapes. Okay, so for you have seen in what like people used to make the or like this type of things people used to make from iron things, like you have seen from iron metal they used to make this type of this type of utensils they used to make. Okay, so this type of things are made by beating it. Okay, so these things you can spread it, or you can if you beat a metallic piece and beat into thin sheet, then it's the property is called malleability. अगर आप किसी मेटल पीस को मार मार के उसको अगर पूरा ये कर देते हो, फ्लैट कर देते हो, तो उसको क्या उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी। सो अगर मैं मेलिएबिलिटी के बारे में हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज द सेम, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स बाय virtue of which it can be beaten into thin sheet, मतलब एकदम पतला शीट बना सकते हो, ठीक है। मार्केट में जो एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह वगैरह का शीट्स आता है, आयरन शीट्स, ये सब का जो शीट्स आता है, ये शीट आपको कैसे मिला, उसको प्रेस करके किसी चीज से प्रेस किया होगा, कुछ मशीनरी से उसको प्रेस किया होगा, आफ्टर हीटिंग और आफ्टर एनी अदर प्रोसेस उसको क्या किया होगा, हीट करके उसको प्रेस किया होगा, तो वो क्या हो गया, और हेमरिंग किया होगा, उसको हेमरिंग करके क्या कर दिया, उसको फ्लैट कर दिया, ठीक है, तीन शीट बना दिया। सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेलिएबिलिटी। इसी प्रॉपर्टीज को आप क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी बीटन इनटू तीन शीट्स। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, ओके मैं ये मिटा देता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनदर प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का, वो है लस्टर। नेक्स्ट लस्टर, सो ये चीज का मतलब है metals are generally lustrous. What I am saying, metals are generally lustrous. So lustrous means what, these metals are lustrous means shiny, they shine. Okay, so generally, for example, if you see gold are what, these are shiny, so these are what we can say that these are lustrous. If you see any metals, if you see iron, if you rub it with a means iron paper or something like this, you can see their shine. Okay, so metals are generally what, shiny. अगर आपको किस मतलब आयरन ही ले लो, फास्ट अगर आपको मतलब ऐसे आयरन पड़ा रहा होगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगा, आपको वो शाइन नहीं आएगा, ठीक है। मान लो कि उसको आपने किसी आयरन पेपर से उसको अच्छा से साफ किया, तो उसको क्या होगा, उसका शाइन आ जाएगा। सो जनरली या आप ये गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, दिस थिंग्स आर व्हाट, दिस थिंग्स क्या है, शाइनी है। सो जनरली द मेटल्स आर व्हाट, शाइनी और लस्टरस। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेटल्स आर लस्टरस। ओके, मतलब मेटल्स क्या है, शाइनी है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, और एक प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट, सोनोरिटी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सोनोरिटी।
सोनोरिटी मतलब ये जो है एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करना। मेटल्स का ये प्रॉपर्टीज है, मेटल्स को अगर बीट किया जाए या मेटल से टकराया जाए तो वो क्या होगा, आपको एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपका मतलब कॉलेज में या स्कूल में जो बेल होता है, बेल को अगर आप उस बेल को ये क्या बोलते हैं, मान लो कि ये बेल है, इससे इस चीज से आपको बेल को मारा तो आपको एक लास्ट में एक रिंगिंग साउंड मिलेगा, ठीक है। उसी रिंगिंग साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी, ठीक है। उसी रिंगिंग साउंड को क्या बोलते हैं, रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस होगा, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मेटल्स आर सोनोरस। ओके, मेटल्स क्या करता है, एक आवाज प्रोड्यूस करता है। मान लो कि एक आपने दो आयरन रॉड लिया, दोनों को एक ऐसा आपने ये क्या मतलब बीट किया एक दूसरे से, सो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो करके रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, सो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोनोरिटी। सो मेटल्स जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल्स आर सोनोरस। क्या लिखेंगे, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा मेटल्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं, जनरली आप अगर देखोगे सो मेटल्स का क्या होता है, हायर डेंसिटी। मेटल्स क्या होगा, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जनरली आई एम सेइंग जनरली, सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जनरली metals have high density. Okay, so and non-metals will have what, lower density. So next if we are going to, if we take the next physical properties, that is physical state. Physical state मतलब ये मेटल का मतलब किस स्टेट में रहेगा, whether it is solid state, liquid state और gaseous state, इसी के बारे में जनरली हम लोग देखेंगे। मेटल्स जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल्स, जो भी मेटल्स हम लोग देखेंगे, जनरली हर मेटल नहीं, जनरली जो मेटल्स हम लोग देखेंगे मैक्सिमम क्या होता है, हार्ड होता है। दैट मीन्स दे आर सॉलिड मेटल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल्स आर generally hard, HRD हार्ड, मतलब क्या बोलेंगे, मेटल्स बहुत टफ होगा। सो फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट्स हम लोग जितना भी मेटल्स देखेंगे, मेटल्स क्या होगा, जनरली वो हार्ड होगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, जो भी मैं जनरली बोल रहा हूं मतलब हर मेटल नहीं है, कोई मेटल जो एक्सेप्शनल केस है, जो हार्ड नहीं है, वो आप बता सकते हो क्या। सो जनरली देयर आर सम मेटल्स, सो इफ वी सी दैट मरकरी, जो अब हमारा थर्मोमीटर में होता है मरकरी, सो मरकरी इज जनरली ए मेटल which is liquid, actually liquid at room temperature, नॉर्मल टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में ये क्या होगा, लिक्विड में रहता है। हमने क्या बोला था कि मेटल्स, ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड, दैट मींस दे आर सॉलिड इन स्टेट्स। सो बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेप्शनल केस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। व्हाट आर द एक्सेप्शनल केस यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ये आपको अच्छा से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सो मरकरी इज ए मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसको क्या होना चाहिए था, ये प्रॉपर्टीज को देखने से इसको क्या होना चाहिए था, सॉलिड होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, वो एक्सेप्शन क्या है, मरकरी क्या है, मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हार्डनेस के ऊपर। नेक्स्ट है हार्डनेस वाला। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड
जो भी हम लोग मेटल्स देखेंगे, आयरन देखो या जो भी मेटल्स देखो, ठीक है, गोल्ड देखो, सिल्वर देखो, ठीक है, ये सब मेटल्स क्या है, आर जनरली हार्ड। ओके, सो मेटल्स क्या लिखेंगे हम लोग, मेटल्स आर जनरली हार्ड। सो देखो बच्चों, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको रिमेंबर करना है। हर मेटल, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऐसा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शनल केस जो कि इससे ये हार्डनेस को नहीं दिखाता है, वो सॉफ्ट है। सो वो कौन सा मेटल है आप बता सकते हो क्या, जो हार्ड नहीं है, जो हार्ड नहीं है। So the exceptional case here are sodium and potassium. Sodium and potassium. Sodium and potassium are the metals ये क्या है, ये जो मेटल्स है सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम जो मेटल्स है ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है, बहुत सॉफ्ट है। और इस ये सॉफ्ट होने के, ऐसा सॉफ्ट है कि आप एक अगर मतलब नाइफ लेते हो उसको और एक मतलब सोडियम या पोटाशियम का पीस लेते हो तो उसको आप आसानी से नाइफ से काट सकते हो, इतना सॉफ्ट है। जनरली उसको होना क्या चाहिए था बच्चों, मेटल्स आर, वी नो दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट द एक्सेप्शनल केस इज हियर इज सोडियम एंड पोटाशियम। इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा और बार बार देखा गया है, ये आता भी है आपका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। सोडियम एंड पोटाशियम आर मेटल्स व्हिच आर जनरली सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट बाय ए नाइफ। आप एक नाइफ से उसको, एक छुरी से आप आसानी से उसको काट सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल। क्या होगा बच्चों, आप गेस कर सकते हो क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो जनरली मेरे प्यारे बच्चों, जनरली मेटल्स विल हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सब चीज आपको रिमेंबर करना है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें देखा गया है, एक्सेप्शनल केस जो है लाइक गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या दिखा गया है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, आसानी से वो क्या होता है, गल जाता है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में इफ वी डिस्कस the physical properties, so generally metals have higher melting and boiling point, but there is also an exceptional case, that is gallium, which have very low melting and boiling point. It easily melts. Okay, so with this your physical properties of metals we have covered. So next we are going to study the physical properties of non metals. यहाँ से हम लोग क्या पढ़ लिया, physical properties of metals पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, physical properties of non metals. ओके बच्चों, so देखिए और एक चीज मैं बता देता हूं, हमने जो ये स्टार मार के, या आप ध्यान रखना, मैंने जो एक चीज डक्टिलिटी के बारे में बताया था, दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू 3 वायर्स। मान लो कि आप 1 ग्राम सिल्वर आपके पास है, 1 ग्राम सिल्वर से आप नियरली 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो। इफ यू ट्राई 2 किलोमीटर लॉन्ग क्या कर सकते हो, वायर आप खींच सकते हो, मतलब उसको निकाल सकते हो। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग क्या कर सकते हो, वायर कैन बी ड्रॉन। सो मैं क्या लिख देता हूं, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ सिल्वर नियरली 2 किलोमीटर long wire can be drawn। इतना सोच लो आप,
जस्ट सोच लो 1 ग्राम सिल्वर से आप कितना 2 किलोमीटर लंबा आप वायर खींच सकते हो, सिल्वर वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो डक्टिलिटी, ये क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने बता रहा हूं। सो नेक्स्ट और एक चीज आपको याद रखना है कि हार्डेस्ट, हमने अभी पढ़ा था हार्डनेस के ऊपर, दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। सो हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्ड मेटल कौन सा होगा, कौन सा है? सो रिमेंबर करना है आपको, टाइटेनियम इज द हार्डेस्ट मेटल। क्या है? टाइटेनियम इज द हार्डेस्ट मेटल। ठीक है बच्चों, टाइटेनियम इज द हार्डेस्ट मेटल्स। और अगर किसी ने एक मार्क का और भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, कौन सा हार्डेस्ट पार्ट है, कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हम लोग का ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? सो वो है एनामेल। ह्यूमन बॉडी में एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। एनामेल इज द हार्डेस्ट substance in human body, in human body। हमारे बॉडी में ये एनामेल कहाँ पे रहता है? आपका दांत का ऊपरी हिस्सा में रहता है। ठीक है, सो दांत का ऊपरी हिस्सा में रहेगा। सो एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी एंड टाइटेनियम इज द हार्डेस्ट मेटल। ओके, सो ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट आपको रिमेंबर करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेट अस मूव फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? नॉन मेटल्स। Okay, so यहाँ पे भी, so now we are going to study the physical properties of non-metals। so यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल्स का, जैसा कि पहले हम लोग ने मेटल्स का देख लिया ऑलरेडी। सो अभी जो है नॉन मेटल्स का हम लोग क्या देखेंगे? सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है नॉन मेटल्स का। सो जैसा कि हम लोग पहले वाला क्या पढ़े थे, कंडक्शन से, कंडक्शन। सो Here हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया बच्चों? देखो नॉन मेटल्स क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, ये कंडक्ट नहीं कर सकता। मान लो कि एक आपका नॉन मेटल है, मान लो प्लास्टिक का आपका एक साइड आप जितना भी गर्म कर लो वो दूसरा साइड आपका गर्म नहीं होगा, आप आसानी से उसका दूसरा साइड पकड़ सकते हो। सो नॉन मेटल कंडक्शन, नॉन मेटल्स आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसी प्लास्टिक से करंट पास नहीं होता है, किसी वुड से करंट पास नहीं हो सकता है। सो दिस आर क्या है? नॉन मेटल से, एंड दिस नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसमें भी एक्सेप्शनल केस है जो आपको रिमेंबर करना है। एक्सेप्ट क्या है? ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, बट इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बीइंग नॉन मेटल, ग्रेफाइट बीइंग नॉन मेटल, इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या हो सकता है? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड इससे क्या हो सकता है? इट कंडक्ट्स, ग्रेफाइट व्हिच इज ए नॉन मेटल, इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे आप करंट पास हो सकता है। ओके, सो ये रिमेंबर करना बच्चों। जनरली ये तो आपको याद हो जाएगा कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द एक्सेप्शनल केस दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट इज which non-metal? graphite. Graphite is, what is graphite? Graphite is a pure form of carbon। वो पूरा कार्बन से ही बनता है, उसमें और कुछ दूसरा चीज नहीं है, कार्बन मिलके ये ग्रेफाइट बनेगा। सो और ये ग्रेफाइट जो है, इससे आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, कंडक्ट कर सकता है। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेप्शनल केस में। ओके, सो नेक्स्ट इफ वी मूव, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? डक्टिलिटी। जैसा जैसा हम लोग ये पढ़े थे वैसा वैसा हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। सो नॉन मेटल्स आर
डक्टाइल है क्या? नॉन मेटल से हम लोग डक्टिलिटी, आपको याद है क्या? डक्टिलिटी क्या बोला था? डक्टाइल मतलब क्या है? हम लोग इट कैन बी ड्रॉन इनटू thin wires. So in the case of non-metals are non-ductile. That means you cannot draw a non-metal into thin wires. आप एक non-metal से उसको खींच के आप लंबा नहीं कर सकते, एक वायर शेप में इसको बना नहीं सकते, खींच नहीं सकते, ठीक है? So non-metals are non-ductile. Okay, so हम लोग क्या पढ़े थे? मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो दैट इज 3. So that we are going to study what property? Malleability. So क्या सोचो बच्चों, नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स whether a non metals is malleable or not. Okay, so आप अच्छा से समझ लो, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. मतलब जैसा कि आप एक मेटल को मतलब क्या है, बीट करके, आपको हैमरिंग करके उसको 3 शीट में बदल सकते हो, लेकिन एक नॉन मेटल को आप 3 शीट में नहीं बदल सकते. क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स आर ब्रिटेल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटेल. एक्चुअली नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल मतलब क्या है? टूट जाएगा. आप उसको हैमरिंग करो, वो मतलब फ्लैट नहीं होगा, वो टूट जाएगा, अचानक वो टूट जाएगा, उसको मतलब ऐसा टूट जाएगा. तो इसको आप क्या कर सकते हैं? मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज वो शो नहीं करता है. ए नॉन मेटल डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, इट ब्रेक्स डाउन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, next physical properties of non-metals are luster. So luster means what? Shiny things. Okay, or glossy type. Okay, so generally non-metals are dull. We have seen that metals are lustrous, like if you think of gold, silver, these things are lustrous, or iron. I have already told you in metals are lustrous. If you think of irons, these are lustrous. For example, if you clean it with sandpaper or iron paper, whatever it is, it will show its shine. Okay, so yeah, but if you think of a non-metals are generally dull in nature. That means it is not lustrous, it is not shiny. Generally, what will write? Generally non-metals are non-lustrous. अभी सोचो बच्चों, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस है क्या? ऐसा कोई भी नॉन मेटल है क्या जो कि लस्टरस है, जो कि शाइनी है? यस, ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सेप्शनल केस. एंड बच्चों, एक्सेप्शनल केस मतलब क्या आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट आयोडीन. एक्सेप्ट व्हाट? आयोडीन. So iodine is a non-metal. If you see your periodic table minutely, you will find iodine under non-metal. So iodine is a non-metal, and it is it should be non-lustrous, or it should be dull, but but it shows luster property. It is quite glossy. It is quite glossy, except iodine. So iodine is generally lustrous. Iodine is shiny. Okay, being non-metal, iodine is shiny. So this is the exceptional case. So मैं इसके बारे में आपको, आयोडीन आप जनरली आयोडीन नहीं देखे होंगे. आयोडीन जनरली हम लोग को अगर कोई मतलब काट या आफ्टर मींस ड्यूरिंग बैंडेज, डॉक्टर यूज्ड टू पुट सम आयोडीन ऑइंटमेंट. ओके, आयोडीन ऑइंटमेंट इन मार्केट, इट इज अवेलेबल. इफ यू सी दिस ऑइंटमेंट also, it is quite glossy type. So this type, so what it can indicate that iodine being a non-metal, it is lustrous. So next we will move to 4th properties of that one non-metal, that is what? Sonority. So बोलो बच्चों, metal sonority मतलब sonorous producing ringing sound. We have already discussed whether a non-metal is sonorous or non-sonorous. Obviously a non-metal is non-sonorous. Non-metals are non-sonorous. मतलब sonorous मतलब
सोनोरस, नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, मतलब उसमें कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। सो कोई सा भी नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, आप उस नॉन मेटल को नॉन मेटल से टकराओ या नॉन मेटल को किसी चीज और से मतलब आप बीट करो, सो देयर विल बी नो रिंगिंग साउंड लाइक योर स्कूल बेल, देयर विल बी नो रिंगिंग साउंड। सो दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज point number 5, that means under point number 5, that means fifth properties of non-metals, we are going to study about the density. So generally metals, we have already studied that metals have high density, but non-metals will have low density. Non-metals have lower density compared to what? Compared to a metal. Non-metals will have lower density. So next we are going to next 6 properties of non-metals, we are going to study about its physical state. फिजिकल स्टेट मीन्स वो कैसा रह रहा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, जनरली बच्चों अच्छा से समझ लेना, जनरली नॉन मेटल्स का स्टेट, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉलिड और रिमेन इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। Generally, what I am saying, generally non-metals are solid or gaseous states. Okay. So non-metals generally solid or gaseous states, but वो लिक्विड में नहीं रह सकता है, उसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो हम बता रहे, पहले लिख लेते हैं। non-metals are generally what? Are generally solid or gaseous. Okay. सो इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड में रह सकता है, गैसियस स्टेट्स में रह सकता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता है एक नॉन मेटल। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है दोस्तों। एक्सेप्शनल केस क्या है? द एक्सेप्शनल केस इज द एक्सेप्ट व्हाट? ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन बीइंग ए नॉन मेटल, ये क्या है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। सो जितना भी एक्सेप्शनल केस है, मैं अगेन बता रहा हूं कि यू हैव टू रिमेंबर। सो ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। आपको क्वेश्चन आ सकता है, नहीं मैं नॉन मेटल which exist in liquid state, so you have to write your answer should be bromine. So बच्चों ये सब आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, अच्छा से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर जनरली कौन सा स्टेट में रहता है? सॉलिड एंड गैसियस स्टेट्स में। ये लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है, बट एक बंदा है जो एक्सेप्शन है, वो क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। डस्टर का गया। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या है, थोड़ा ये ऊपर से मिटा देता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ते हैं? हार्डनेस। हाँ, सो हम लोग पढ़े थे नॉन मेटल्स आर जनरली हार्ड, हम लोग पढ़े थे, लेकिन नॉन मेटल्स आर जनरली क्या होगा? नॉन मेटल्स हमने ऑलरेडी बोल चुका हूं, नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। ये हैमर करने से कुछ भी करो आप इसको, मतलब नॉन मेटल को आज मान लो कि ये आपका आयरन पीस है और ऐसा शार्प एंड है, आप उसका ऊपर ऐसे गिराओ, वो टूट जाएगा, ठीक है। ये ग्लास की तरह वो क्या हो जाएगा? पूरा टूट के बिखर जाएगा, ब्रिटल है। मान लो कि एक ब्रिक है, आपको उसको हैमर करो, वो टूट के 2 पीस में टूट जाएगा, ये पीस उसमें टूट जाएगा। सो इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। सो जनरली नॉन मेटल्स क्या होगा? जनरली नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, वो हार्ड नहीं है, वो ब्रिटल है। सो बट there is an exceptional case, except diamond। क्या है? except diamond is a non metal, क्योंकि ये कार्बन से बना रहता है, ठीक है। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो डायमंड क्या है? कार्बन से बना रहता है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। सो डायमंड भी एक क्या है? एक नॉन मेटल है। इसको क्या होना चाहिए था? इसको ब्रिटल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? हम लोग जानते हैं डायमंड इज वेरी टफ, वेरी हार्ड सब्सटेंस। सो एक्सेप्ट डायमंड which is
वेरी हार्ड एलिमेंट और क्या है, हार्ड नॉन मेटल, वेरी हार्ड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज नंबर 8, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल। सो जनरली क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल का क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। मेटल का अगर हाई है तो नॉन मेटल का क्या होगा दोस्तों, मेटल का अगर हाई है तो नॉन मेटल्स विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, generally non-metals have low melting point and boiling point. Generally non-metals have low melting point and boiling point. इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट। तो इसमें क्या एक्सेप्शनल केस है, अगर है तो आप बताओ मेरे को। सो जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो with this your this physical properties of non-metals, with this your physical properties of non-metals are finished. So generally it is quite easy to remember the physical properties of non-metals. How? It is quite opposite to your properties of physical properties of metals, like malleability. Metals are malleable, non-metals are non-malleable. Like this you are going to remember all those things, and do remember the exceptional case for your 1 mark questions. Again and again I am telling you. So okay, next we are going to study another topic, that is chemical properties. लोगों को अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, chemical properties of metals and non-metals. So the first point which we are going to discuss in the chemical property under the heading chemical properties of metals and non-metals is regarding its valence electron. Okay, ठीक है। So what I have written, see, metals generally they have 1 or 2 or 3 valence electron. Metals, अगर आप किसी metals का valence electron आप निकालोगे, so आपको कितना मिलेगा, 1, 2 or 3. Either it will come the valence electron 1 or 2 or 3. So if you find out the valence electrons of a non-metals, you will get 4, 5, 6, 7 like this. Okay, so now the questions comes, आप लोग का दिमाग, आप लोग का माइंड में ये स्ट्राइक करेगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। बहुत सारा बच्चों ने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी यू नो व्हाट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल और लास्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो मान लो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझाने के लिए मैं एक बोल रहा हूं। अब मान लो कि सोडियम है, सोडियम, ये सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, वी नो दैट सोडियम हैव एटॉमिक नंबर 11। ओके, सो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग कैसा लिखेंगे, 281। दैट मीन्स व्हाट, सोडियम अगर एक एटॉम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर, इसका फर्स्ट शेल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में कितना रहेगा, 1। दैट मीन 2 + 8 10 + 1 11। ओके, सो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। सो ऐसा जितना भी आप मेटल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे वो कितना में आएगा, 1, आइदर 1 आएगा, 2 आएगा और 3। सो जनरली मेटल्स हैव देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3। सो अभी हम लोग मूव करते हैं और नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल क्या ले, हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन इज ए नॉन मेटल, राइट। सो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, राइट। आप लोग बच्चों में बार बार कह रहा हूं, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू 20 आप लोग का एलिमेंट्स का आप ऐसा मतलब बाय हार्ट कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसा करके 20 तक आप बाय हार्ट कर लीजिए। सो ऐसा सीरियल में आप जब बाय हार्ट करोगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर आएगा। सो आसानी से आपको ये
बहुत ही फायदेमंद होगा। सो मान लीजिए अब हमने क्या बोला, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। सो इफ वी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इट कम्स 2 and 4, that means its second shell will contain 4 electrons. So see, generally I have written non-metals have 4, 5 or 6 or 7 electrons. So कार्बन एक नॉन मेटल है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। ठीक है, समझ में आ गया। अगेन मैं बोल रहा हूं, मेटल्स हैव जनरली दे हैव either 1, 2 or 3 valence electron and non-metals have 4, 5, 6 और 7 valence electron. Now हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ और प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर मतलब ये डोनेट करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कोई अगर देता है तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जो डोनेट इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अभी समझो बच्चों, मेरे अच्छा से समझना ये चीज, कैसे वो इलेक्ट्रॉन, एक मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये आप लोग को अच्छा से समझना होगा। मान लो कि मैंने क्या बताया, सोडियम का लास्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग कितना लिखा था 281, लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। सी, ये फर्स्ट शेल का 2 है, उसका मतलब कंप्लीट है। फर्स्ट शेल का जितना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ सकता है वो क्या है, कंप्लीट है। सेकेंड शेल में हम लोग जानते हैं कि सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सो सेकेंड शेल इज ऑल्सो कंप्लीट। बट थर्ड शेल क्या है, थर्ड शेल टू फॉर्म इट्स माने कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, थर्ड शेल में 8 होना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना है 1 है। सो ये अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं हुआ। ये क्या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, जब दूसरा चीज के साथ रिएक्ट करेगा, ये चाहेगा कि अपना जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, डोनेट कर दे। क्यों डोनेट करे, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई दिस मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, क्यों मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर है। अच्छा से समझना, इलेक्ट्रॉन डोनर देखिए, इसका अगर ऑक्टेट मतलब ये स्टेबल होना चाहेगा, जब ये स्टेबल होना चाहेगा आइदर ये 7 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड शेल में क्या होगा, और 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ताकि ये 8 बन जाए थर्ड शेल में। या क्या कर सकता है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी तरह अपना यहां से हटा देने से ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है देखो, आइदर इसको 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या चूज करेगा, व्हाट इट विल चूज, वेदर 1 इलेक्ट्रॉन टू डोनेट और 7 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सेप्ट, व्हाट इट विल डू। ओके, सो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय वो क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे देगा। ड्यूरिंग रिएक्शन विथ अदर एलिमेंट और कंपाउंड इट विल डोनेट दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलाइज, टू फॉर्म, टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस। Got my point? To react with other compounds or element, it will donate this valence electron. ओके, सो क्यों डोनेट करता है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या लूज करे, उसके जब लूज करता है उसको एनर्जी चाहिए होता है। अगर ये लूज करता है तब भी एनर्जी क्या होगा, उससे डिसिपेट होगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तब भी एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ेगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैव टू यूज इट्स एनर्जी। सो अभी 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी क्या होगा, कम खर्च होगा। सो हियर हियर क्या होगा, एनर्जी कम चाहिए होगा। सो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे देता है। समझ में आ गया। अभी देखो इसमें जनरली हमने क्या बोला, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, इफ वी टेक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 8 और क्या 7।
287 क्लोरीन। सो 8 + 2 10 + 7 17। सो ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, ये ऑल्सो स्टेबिलाईज होने के लिए, क्लोरीन ऑल्सो स्टेबिलाईज होने के लिए ये चाहेगा कि अपना लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे या किसी से और 1 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। समझ में आया बच्चों? ये चाहेगा किसी से 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले ताकि इसको 7 + 1 क्या हो जाए, 8 बन जाए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अभी ये क्या होगा, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहे तो ये 7 किसी को दे सकता है, नहीं तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन करेगा क्या, कौन सा ऑप्शन वो चूज करेगा, whether to donate 1 electron, whether to accept 1 electron or to donate 7 electron? Obviously it will accept 1 electron because in this case there is less dissipation of energy will occur. Got my point? इसको एनर्जी कम चाहिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने में। सो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किससे लेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन क्या ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन ताकि ये क्या करे, ये रिएक्शन कर सके या स्टेबिलाईज हो सके। सो तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। सो अभी दोनों क्या हो गया, स्टेबिलाईज हो गया, अभी दोनों का रिएक्शन भी हो गया। सो ये क्या बन जाएगा, NaCl। समझ में आया बच्चों? सो क्या हुआ, यहां पे ये क्या करता है, डोनेट करता है। आप जितना भी मेटल्स देखोगे ये जनरली क्या होगा, अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और जनरली जितना नॉन मेटल्स है वो अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ताकि वो स्टेबिलाईज हो जाए या रिएक्शन कर सके। ठीक है? सो जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट इज आयन टाइप। किस तरफ का आयन फॉर्म करता है एक मेटल्स, कौन सा टाइप का आयन फॉर्म करेगा? हमने क्या लिखा, जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायन। जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायन। मेटल्स कौन सा आयन फॉर्म करेगा, कैटायन, एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन। समझ में आ रहा है बच्चों? नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। अभी मेरे को बताओ ये कैटायन कौन सा चार्ज होता है, एनायन कौन सा चार्ज होता है? कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायन इज निगेटिवली चार्ज। अभी इसमें समझने के लिए बहुत सारा चीज है बच्चों, मेरे अच्छा से समझना। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों आपका सर बोल रहे हैं कि जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायन और पॉजिटिवली चार्ज? अभी अच्छा से समझ लो, यहीं पे देख लो। मैंने क्या लिखा था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281। ओके, सो दैट मींस दिस सोडियम, अच्छा से समझना, दिस सोडियम, ये जो सोडियम है ये सोडियम का कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग कितना जानते हैं, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 11। इसका प्रोटॉन भी कितना है, 11। प्रोटॉन भी कितना है, 11। समझ में आया? अभी देखो बच्चों, जब इसका मतलब नॉर्मल केस में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, अभी जब ये कोई रिएक्शन करेगा किसी के साथ, ठीक है, सो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। क्या करता है, किसी को दान में दे देता है, किसी को डोनेट कर देता है। सो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। लेकिन प्रोटॉन का नंबर कितना रह गया, इसका 11। सो अभी कौन सा चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज, वी नो दैट। सो अभी कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा है। सो पॉजिटिवली चार्ज मींस कैटायन। सो क्या हुआ, मेटल, जनरली मेटल्स फ्रॉम क्या, कैटायन। समझ में आया बच्चों, क्लियर? अभी देखो नॉन मेटल्स क्या करेगा, नॉन मेटल्स मान लो कि क्या लिखे, क्लोरीन का एग्जांपल लेके देखते। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 17
प्रोटॉन नंबर कितना है 17, समझ में आया। अभी क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो ये सोडियम ने डोनेट करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। सो ले लेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया 18, प्रोटॉन कितना रह गया 17। सो इसमें किसका चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। सो दैट मीन्स इट इज निगेटिवली चार्ज मीन्स एनायन, सो नॉन मेटल्स फ्रॉम एनायन। समझ में आया, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मूव करते हैं ऑक्साइड टाइप में। ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, ऑक्साइड टाइप। सो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसमें इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर मेटालिक ऑक्साइड, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मेटालिक ऑक्साइड। Dear students, see, you have studied in acid, base and salt. That means in previous chapter, also in first chapter, you have studied all those things. What happens, you have studied what happens when an when an oxygen react with a metal. When oxygen react with metal, it forms its corresponding metallic oxide. Or when a non-metals reacts with oxygen, it forms its corresponding non-metallic oxide that we have studied. For example, if magnesium reacts with oxygen, it forms magnesium oxide. If we consider in the context of non-metals, if carbon react with oxygen, it forms carbon monoxide or carbon dioxide, whatever it is. Okay, so generally metallic oxide means when metals react with oxygen, it forms it metallic oxide. Okay, so metallic oxide, that means metal plus oxygen, metal plus oxygen, metallic oxide. Okay, so when metal oxide, generally all the metallic oxide, इसका नेचर क्या होगा, whether ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा। generally all metallic oxides are basic in nature। मैंने क्या लिखा, सब मेटालिक ऑक्साइड कौन सा नेचर में होगा, बेसिक इन नेचर। ओके, मेटालिक ऑक्साइड कौन सा नेचर में होगा बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर में होगा। ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये आप लोग पढ़ चुके हो, कहां पे पढ़े हो, ये आप लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। सो अभी कोई मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये एक मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड। ऑल दिस मेटालिक ऑक्साइड जितना भी होगा, ये कौन सा नेचर में होगा, बेसिक इन नेचर। आपको अच्छा से याद रखना है, मेटालिक ऑक्साइड कौन सा नेचर में, बेसिक इन नेचर में। अभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली कौन सा नेचर का होगा, ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, एसिडिक नेचर में होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो कोई सा भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कौन सा नेचर का है, हम लोग सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इज एसिडिक। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है। सो ये कार्बन जो है ये नॉन मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड, दिस थिंग्स आर corrosive, these things are corrosive, carbon dioxide, these things are acidic in nature. So non-metallic oxides are generally acidic in nature. So once again ये कंप्लीट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वंस अगेन मैं बोल देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। मेटल्स जनरली दे हैव, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। नॉन मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, जनरली दे हैव 4, 5, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर, वेदर मेटल, जनरली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। Why donor? Because in the last shell it will have the valence electron 1, 2 or 3. It will be easier for the atom to lose this valence electron rather gaining higher number of electron. Okay, so it will choose because इसको क्या करना होगा, इसको कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करने में।
लेकिन अगर बात करें नॉन मेटल के कॉन्टेक्स्ट में, नॉन मेटल को क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि उसको आसानी रहेगा, क्योंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर रहता है क्या 5 6 7 ऐसा बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको आसानी होगा कि इधर 3 ले ले या क्या ले ले, 2 ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा से ले ले, रेदर की डोनेट करे ये, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयन टाइप। आयन जनरली मेटल्स आर कैटायन, बिकॉज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, दैट मीन्स द मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, that is anion. So oxide types, that mean when metals reacts with oxygen it forms its corresponding oxide, already I have told you. So metallic oxide का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो अगर एग्जांपल लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑल दोज ऑक्साइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, ये सब जितना भी होगा, ये इसका ऑक्साइड कितना होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस क्लास हियर। डियर बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल चुका हूं, इस वीडियो में बोल चुका हूं, आप लोग जितना भी बहुत सारा एक्सेप्शनल केस ऑलरेडी देख चुके हो, दिस एक्सेप्शनल केस ये तो आप सीख लोगे, ये तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी लेके ये सब लिख के प्रैक्टिस करो, अपना बुक, गो थ्रू योर बुक्स इन डिटेल्स, गो थ्रू द चैप्टर इन डिटेल्स, or whatever the exceptional case you write in your copy and memorize it. Okay, exceptional case से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत important क्वेश्चन आएगा, so you have to see it very minutely. Okay dear students, thank you and read well.